Good morning everyone. Welcome to our science video lessons. Today, may hope I complete your syllabus up to your October month. Okay. So I left the remaining portion of your class 7 science book for our regular classes. Okay. So nowadays I will start your exercise. Okay. I prefer your science which book of class 7 to performing all the activity or all the question answer which will be written or given inside this book. May I proceed chapter by chapter? So let's begin from the first chapter. Okay, chapter number 1, the nutrition in plants. Okay, I have given it and described all the content inside this chapter. So now let's start our question answer section from today. Okay, so in this video may I use Hindi language for your detailed clarification. Okay, so whenever from your book your page number 12. Okay, so following the page number 12 we starting our discussion. So your first question is section A, that is take the correct answer. Okay, so let's begin from section A with your take the correct answer. Okay, so you know that in that type of questions one question will be given and between that 4 options will be given to you. Out of this 4 options you must have to choose a single one. Okay, so your first question is the green pigment present plants in the green pigment present in the leaves is dash. First question is that the green pigment present in leaves is X. Okay, so आपका क्वेश्चन क्या है कि the green pigment present in the leaves is X. Okay, तो leaves का प्लांट का जो leaves होता है उसका जो पत्ता होता है उसमें पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट मतलब वन टाइप ऑफ कलर, एक तरह की कलर है. ओके, छोटे छोटे पर्टिकुलर्स हैं जो कि किसी भी तरह का कलर बनाने के लिए हमें काम आते हैं. तो प्लांट्स के जो लीफ होता है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है. ओके, सो जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेनली जो प्लांट्स का लीफ होता है वो ग्रीन दिखता है. वो किस पिगमेंट के वजह से उसका कलर ग्रीन होता है. और जो प्लांट्स के लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, ये है आपका क्वेश्चन. ओके, तो उसका 4 ऑप्शन दिया है. तो फर्स्ट है योर जेंथोफाइल, नेक्स्ट योर क्लोरोफिल, देन योर क्रोमोफिल एंड फोर्थ वन इज योर अल्कोहल. ओके, जेंथोफिल there is no mention in your book also, so remove this one, your point number A. Then come to the section your chlorophyll, then chromophil and alcohol. Alcohol that will be prepared from the sugar container. Okay, so and the color of the alcohol is also white color, so it does not recognize it is as green. Okay, next is your chromo. Remaining 2 options are there. Then is your chromophil and chlorophyll. Okay, सो अल्कोहल का कलर जो है वो वाइट होता है, इसलिए हम अल्कोहल को छोड़ देते हैं. और जेंथोफाइल जो कि आपके बुक में मेंशन ही नहीं है. और बचा 2 ऑप्शन, एक है क्लोरोफिल और दूसरा है क्रोमोफिल. ओके, क्रोमोफिल जो होता है उसमें वैरायटी कलर है. उसमें वाइट पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है. क्योंकि क्रोमोफिल क्या होता है, प्लांट के स्टेम में हो गया, उसका फ्लावर में, उसका फ्रूट्स में ये रहता है, इसीलिए उसका कलर डिफरेंट होता है. उसके yes, chromophil की वजह से different flower looks different. Okay, and the remaining one option, that is your chlorophyll. Yes, your option number B, that is your chlorophyll. Option number B, that is your answer. Option number B, chloro
chlorophyll. Here chlorophyll is the answer. Okay, that the green pigment present in the leaves is your chlorophyll. Okay. Okay. So your next question is the tiny pores present on leaves through which air is taken by plants are ducts. Okay. So your question number 2 is the tiny pores which is present on leaves through which is that the tiny pores present on the leaves through which air is taken by the plants are ducts. तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तो छोटे टीनी पोर्स मतलब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जो होल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अंडर लीव्स, मतलब पत्ते के ऊपर जो छोटा छोटा सा होल बना हुआ होता है उसके होल से क्या होता है? एयर इज टेकन बाय द प्लांट्स. ओके, सो जो कि प्लांट और पौधे के जो पत्ते हैं उसमें से बहुत से छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं. उस होल्स के साथ प्लांट्स क्या करते हैं? जो कि चाहे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जब प्रीपेयर ऑक्सीजन से छोड़ता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसके बाद जब उसका रेस्पिरेशन होता है वो बाहर से ऑक्सीजन लेता है इस छोटे छोटे पोर्स से और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं? ओके, सो आपका ऑप्शन है योर स्टोमाटा, योर गार्ड सेल, देन योर क्यूटिकल, देन योर क्लोरोफिल. ओके, तो इसका आंसर है स्टोमाटा. ओके, सो स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स, ओके, दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट लीफ व्हिच इज यूज्ड टू एयर टेकन बाय द प्लांट्स. ओके, इसका आंसर है स्टोमाटा. मैं होप यू क्लियरली, शायद आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा ये सब. मैं ट्राई टू डिटेल डिस्क्राइब व्हाट आर द ऑप्शन गिवन बाय यू एंड व्हाट इज द gist of the question. Okay, now on to the third question. Okay, what will be the third question? That the question is the mistol is an example of ducts. Okay, mistol. क्या दिया गया है? मिस्टलेटो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस. मिस्टलेटो किसका एक एग्जांपल है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट योर ऑटोट्रॉफ, देन योर बी ऑप्शन इज योर पैरासाइट्स एंड थर्ड ऑप्शन इज योर सेप्रोट्रॉफ्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर होस्ट. ओके, तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? जो खुद का खाना खुद बनाता है. और पैरासाइट का मतलब क्या है? जो कि दूसरों के ऊपर रहता है, उसके ऊपर ये रंडर रहता है, उसको बना हुआ खाना खाता है. ओके, और साइप्रोट्रॉफ क्या होता है? जो कि मरा हुआ चीज के ऊपर रहता है और उससे ही अपना खाना कलेक्ट करता है. और होस्ट क्या है? होस्ट जो है पैरासाइट और होस्ट तीनों में अगर हमारे अंदर कृमि वगैरह रहते हैं तो हमारे अंदर हमसे प्रिपेयर हुआ खाना कृमि लेता है, तब हम हो गए होस्ट और कृमि जो होगा आपका पैरासाइट. ओके, सो इस तरह मिस्टलेटो जो है, तो मिस्टलेटो जो है इसका एक एग्जाम्पल है, वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है. ओके, एक तरह का पौधा है जो कि दूसरे पौधे के ऊपर रहता है और उसी पौधे से प्रिपेयर हुआ खाना वो
खाता है, तो उसका आंसर बन जाएगा आपका पैरासाइट्स। ओके, आंसर हो गया आपका पैरासाइट्स। ओके, नाउ कम टू योर फोर्थ क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी इज टेक्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी इज टेक्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, फंगाई जो एक तरह का जो आपका फंगस जो है, सपोज एग्जांपल उसका है क्या, आपका मशरूम जो है वो इस तरह का एक तरह का फंगस होता है, उसका न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। हमने तरह तरह के न्यूट्रिशन का मोड पढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक। ओके, नेक्स्ट योर पैरासाइट। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो खुद का खाना खुद बनाता है। होलोजोइक का मतलब क्या है, जो कि दूसरे जीवित जीवों को पूरी या आधे तरीके से खाता है, उसे कहते हैं हम होलोजोइक। फिर आपका आता है पैरासाइटिक, मतलब जैसे दूसरे जीवित जीवों के ऊपर रहना और उसी से अपना खाना कलेक्ट कर खाना को उसे कहते हैं पैरासाइटिक। नेक्स्ट होता है सैप्रोफाइटिक, मतलब कोई भी मरा हुआ या अगर जो गला हुआ चीज होता है उसके ऊपर रहकर उसी से खाना कलेक्ट करना कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक। ओके, तो फंगस जो है कहीं भी वो एकदम क्लीन जगह पे नहीं, जहाँ पर कुछ मैला पड़ा हुआ होता है, कोई सपोज कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, वो जब पानी में भीग जाता है, जब गलने लगता है तभी उसके ऊपर फंगस आ जाते हैं। और कभी इसी तरह का वेजिटेबल वेस्ट जो होता है, कहीं ब्रेड को हम कुछ दिन बाहर छोड़ दे तो वहाँ पे फंगस आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक तरह का उसका जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो है सैप्रोफाइटिक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सैप्रोफाइटिक। Repeat number D. Next comes the fifth question, that the organism that feed on dead and decaying matters are called tax. Okay, so यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो जब किसी भी तरह का डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर रहकर अपना खाना कलेक्ट करता है, उसे उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया फंगस का, और दूसरी बार क्या है आपका सैप्रोट्रॉफ्स का डेफिनेशन पूछ दिया। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन the organism that feed on dead and decaying matter is death. Okay, अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित जीव है, ओके, वो क्या करता है, अगर उसका अपना खाना है वो किसी भी मरे हुए या सड़े हुए चीज से कलेक्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस इज सैप्रोट्रॉफिक। ओके, इसका एक सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑटोट्रॉफ और सैप्रोट्रॉफ। हार्बीवोरस मतलब क्या है, जो कि प्लांट्स को खाता है, प्लांट पेड़ पौधे या घास पत्ते को खाता है, उसे कहते हैं हार्बीवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या है, अगर कोई दूसरे जीवों को मांस के ऊपर डिपेंड करता है, फीड ईटिंग एनिमल्स। ओके, सो सॉरी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो कि दूसरे जीवों को मांस खाते हैं, उसे कहते हैं कार्निवोरस। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, खुद का खाना खुद बनाता है। और सैप्रोट्रॉफ्स क्या है, जो किसी भी डेड और डिकेइंग मैटर्स को खाता है, उसे कहते हैं हम सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर लीजिए इसी तरह से आपका टिक द करेक्ट आंसर हो गया।
Okay, I hope you fully understand and didn't understand this all this chapter. Okay, in this exercise of this chapter, I have also clearly done in your regular classes also. Here I have detailedly explained about all these things. Okay, so now on to the next section. And I hope the PDF format of this answer sheet will be sent to your WhatsApp number also. If you have anyone that does not got the WhatsApp section, okay, so they can take the screenshot on your mobile also and use it. Okay. Next, fill in the blanks. Okay, so come to section number 2. Here A section will be completed. Come to the next section. That is section B. That is fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चंस का एक सपोज एक आंसर टाइप का दिया होता है, उसका कोई भी मिडिल पार्ट या लास्ट पार्ट स्टार्टिंग पोर्शन छोड़ दिया होता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डेक्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रीन प्लांट्स are called as since they क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डेक्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें कहा गया है कि ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है, ताकि वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं उनके जब पत्ते ग्रीन होते हैं, मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स वो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, इसलिए उसे कहा जाता है क्या, ऑटोट्रॉफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस during photosynthesis plants taken in gas, and release gas। यहाँ पे दोनों टेक्स्ट दिए गए हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेकन इन गैस एंड रिलीज गैस। ओके, तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके लिए करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसलिए करता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्लांट खुद का खाना खुद बना पाता है। ओके, इस प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और वाटर यूज होता है, जो कि क्लोरोफिल में सनलाइट के हेल्प की वजह से एक क्या प्रिपेयर होता है, आपका एक तरह का जो ग्लूकोज टाइप का फूड प्रिपेयर होता है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इसीलिए इसके बेसिस इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो टाइम पे प्लांट क्या अंदर लेता है, प्लांट टेकन इन गैस एंड रिलीज गैस। ओके, तो क्या अंदर लेता है स्टोमाटा के सहारे और क्या बाहर छोड़ता है। तो जो प्लांट टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्टकटली CO2 भी लिखा जाता है। कार्बन 2 का मतलब डाई, O का मतलब ऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, जो बाहर छोड़ता है उसे वो है ऑक्सीजन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में बहुत काम आता है। हमारे सांस जो लेते हैं वो क्या ऑक्सीजन पाने के लिए, वो ऑक्सीजन कौन प्रिपेयर करता है, वो प्लांट प्रिपेयर करता है, इसे शॉर्टकटली O2 भी लिखा जाता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसाइज्ड
by the plants is stored as decks. The food synthesized by the plants stored as प्लांट में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, ओके, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज वेस्ट। सो प्लांट जो भी अपना खाना प्रिपेयर करता है वो उसको कौन सी मोड में किस तरीके से उसे स्टोर करके रखता है। ओके, जब हम चावल खाते हैं, जो राइस खाते हैं, राइस इसका क्या पार्ट है, जो उसका फूड पार्ट है, वहाँ पे वो किस तरह से राइस बना हुआ स्टोर होता है, उसे कहते हैं आप स्टार्च। ओके, तो जितना भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर देगा और स्टार्च के रूप में उसे स्टोर करके रखेगा। तो आंसर हो गया आपका होता है स्टार्च। ओके, उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज। क्वेश्चन आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर कॉल्ड, ओके, तो क्वेश्चन आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स आर कॉल्ड टिश्यू इन प्लांट्स आर कॉल्ड, ओके। सो सपोज एक प्लांट्स है, प्लांट में क्या होता है, दो तरीके के टिश्यू होते हैं, ओके। तो एक टिश्यू क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है और एक टिश्यू क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो जो टिश्यू आपका नीचे से ऊपर जाता है वो क्या करता है, तो रूट के साथ जितना भी पानी कलेक्ट होता है उसे लीफ तक पहुंचाता है, ताकि उससे क्या फोटोसिंथेसिस जो उसका प्रोसेस है उसमें यूटिलाइज किया जाए। ओके, फिर बाद में क्या होता है कि लीव्स में आपका फूड प्रिपेयर होता है, उसी से ही क्या होता है वो दूसरा टिश्यू निकलता है, प्रिपेयर फूड प्लांट्स के हर एक हिस्से में उसे पहुंचाता है। ओके, तो जो हिस्सा पानी को रूट से लीफ तक पहुंचाता है उसे कहते हैं जाइलम, और जो क्या होता है प्रिपेयर फूड यहाँ से जो लीफ से प्लांट्स का हर एक पोर्शन को टू रूट वगैरह स्टेम, ओके ओके, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। मैंने अपनी क्लास में ऑलरेडी तुमको पढ़ाया चुका है। ओके, सो किसका काम क्या कुछ है, जाइलम का क्या काम क्या है, क्या वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और जो फ्लोएम है वो क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स आर कॉल्ड योर जाइलम, that's why I have your xylem। Okay, so I have already written in your book we have question answer, we are discussing only about xylem, but if you don't know about the phloem then you will confuse during the answering this question। Okay, so I may clear out any type of doubt at here। Okay, now come to the next word, that the plants which eat insects are called as। The plants which eat insects are called pests। ओके, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो जो कुछ प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, अगर जो प्लांट का खाना खुद बनाता है तो वो गया आपका ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो ऐसा भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि जो मार्सी इलाका, जो दलदल के इलाके टाइप में रहते हैं, जहाँ पर उनके पास नाइट्रोजन और कैल्शियम सही मात्रा में सॉइल से नहीं मिल पाता, तो क्या करते हैं वो लोग दूसरे इंसेक्ट को खाने के
लग जाते हैं। ओके, तो उन इंसेक्ट से वो अपना कैल्शियम और जो उसका नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है उसे फिलअप करते हैं। ओके, सो उस प्लांट्स को क्या करेंगे, द प्लांट्स व्हिच ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। दिस इज रिलेटेड टू इंसेक्ट। ओके, जो लोग इंसेक्ट खाते हैं उनसे कहेंगे हम इंसेक्टिवोरस। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो लोग इंसेक्ट को खाएंगे, जो प्लांट इंसेक्ट को खाएगा उसे कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। Here we complete the two section of the first section A and section B. Now come to your section 3. State true or false. Okay. Okay, student. Now come to the third section. Okay, here the section C is there. Okay, section C, that is state true or false. Okay. यहाँ पे हर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन में बस हमें ये चूज करना है कि ये जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ओके, इज इट ट्रू और फॉल्स? Okay, so it is absolutely true. That's why, because the leaves prepare their food at where leaves, so leaves is called as a food factory. तो जो प्लांट्स का लीव्स होता है, लीव्स में ही सारा खाना बनता है, इसलिए जहाँ खाना बनता है तो इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है और द किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्लीमी ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड्स आर द फंगाई। ओके, तो कभी कभार आप पॉन्ड्स में देखिए हम तो उसके ऊपर एक ग्रीन सा लेयर जो फैल जाता है, ठीक है, तो वो जो स्लीमी ग्रीनी पैचेस है जो पॉन्ड्स में आ जाते हैं वो सब क्या है, वो सब है फंगाई। वो सब फंगाई है क्या? नहीं, वो सब क्या है, वो सब आलजी है। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, फंगाई दिया गया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ओके, come to the third statement है saprotrophs are useful scavengers। scavengers क्या होते हैं, जो कि क्या हो, जो आपका डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। और सैप्रोट्रॉप्स उसका उसी मतलब है। तो जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, अगर कोई जीव मर गया, ओके, तो फिर एक जगह पड़ा रहेगा, तो हजार सब जब पड़ा रहेगा तो जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरह से एकदम से कब्रिस्तान बन जाएगा, है कि नहीं? अगर वो जब हम भी मर गए तो हम जब मिट्टी से नहीं मिल जाते, एक जगह पर पड़े होते तो मुर्दों का पहाड़ बन जाएगा और एकदम से पूरा सारा धरती एकदम कब्रिस्तान बन जाएगा। इसी स्कैवेंजर के सहारे ही वो हवा में, पानी में और जो मिट्टी में मिल जाते हैं, इसीलिए वो क्या है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सो सैप्रोट्रॉप्स को क्या कहा जाता है, यूजफुल स्कैवेंजर। ओके, दिस स्टेटमेंट आल्सो बी ट्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, soil is the only source of your minerals of the to the plant। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, पीचर प्लांट इज ए कार्निवोरस प्लांट। ओके, तो आपने बहुत सारे यहाँ पे 2-3 कार्निवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा होगा। ओके, सो पीचर प्लांट जो है एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसे आपका कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है और इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है। जो पीचर प्लांट है एक तरह का पीचर जैसा फेस होता है, उसमें अगर कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं उसको अपने अंदर खींच लेता है, उसे खाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ओके, आपको जब कोई आंसर शीट भेजा गया उससे थोड़ी अगर इधर उधर हुआ है तो थोड़ा चेक कर लेना, यही जो आंसर है वही एकदम सही है। ओके, सो अभी क्वेश्चंस का फोर्थ सेक्शन आता है, तो सेक्शन डी है वो क्या, मैच द कलर। हियर वी हैव 2 कलर्स आर गिवन। ओके, हियर कलर 1 is color 2. Some points are given and the 5 points are given in the column 1 and 5 points are given in the column 2. Okay, so now we have to match the related words from column 1 and column 2. Okay, so अभी क्या करना है हमको कि जो भी यहाँ पे column 1 में दिए गए वर्ड्स है उससे रिलेटेड column 2 में जो कुछ वर्ड्स है उसे हम मैच करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, पी। पी जो हम खाते हैं
पी इससे रिलेटेड सैप्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक, सिम्बियंट्स, लीग्यूम और कंपोजिट। ओके, सो जो पी प्लांट होता है उसके नोड जो रूट्स है उसमें छोटे छोटे जो नोड्स वगैरह होते हैं, वो नोड्स में क्या होता है, जो 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 कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो लेगुमिनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पी प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। सो ये सब प्लांट्स कौन से फैमिली में आते हैं, इनको कहा जाता है लीग्यूम। ओके, इनके अंदर क्या है, लेगुमिनस नाम का एक बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट है अमरबेला। अमरबेला एक तरह का प्लांट, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास में अगर कोई प्लांट है तो इसके ऊपर जो ग्रीन बस ये क्या होता है, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का होता है, और पूरी तरह से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी प्लांट के ऊपर आप छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में सारा प्लांट कवर कर देगा, और कुछ महीनों में प्लांट को पूरी तरह से मार भी सकता है। ओके, ये क्या है, एक तरह का पैरासाइटिक प्लांट। ओके, सो अमरबेल इज आल्सो ए पैरासाइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो लाइकेन और लीचेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है आपका कोई अगर जो आल्जी और फंगाई दोनों जब मिल जाते हैं और एक साथ रह के खाना एक्सचेंज करते हैं तो उनको कहा जाता है लाइकेन। ओके, सो लाइकेन इज आल्सो योर कंपोजिट। ओके, लाइकेन दैट इज योर कंपोजिट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मशरूम। मशरूम दैट इज ए रिलेटेड टू फैमिली ऑफ फंगस। जो फंगस का फैमिली में आता है, जो फंगस में जितने भी आते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना कलेक्ट करते हैं। जो डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जो मशरूम भी आ जाएगा आपका सैप्रोट्रॉप्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या, माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है, अगर ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे लाइक पी प्लांट्स, इन सब प्लांट्स के जो रूट्स होता है उसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं, जो बबल से लेकर स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, उस बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट उसे देते हैं और प्लांट को प्रिपेयर हुआ खाना वो खुद खाते हैं। इसी तरह से उनके बीच एक सिम्बायोसिस बन जाता है। ओके, सो माइकोरिजा आल्सो ए symbiosis. Okay, so here we conclude about your match the column. In this video lesson, may I clear about your discussion? Okay, so here we clear section A, B, C and D. In this section we clear the tick the correct answer, fill in the blanks, straight to true or false or match the column. Okay, so इन चारों तरह के क्वेश्चन आंसर हम एक एक का डिटेल तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर उसका जो भी ये शायद सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर जितना भी शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।